So now with the help of this size and frequency, how you are going to calculate the range and the coefficient of the range. So range means highest value minus the lowest value. So highest value means from the size which is given in the question, find out the highest value. So what is the highest value in the size? 18, and lowest value is 10. This is 8. Now what about the coefficient of range? H minus L upon H plus L. 18 minus 10 upon 18 plus 10, 8 upon 28. 0.29. Okay, now the last one is the frequency distribution series. The third kind of series in which we have to apply the range and the coefficient of range is the frequency distribution series, a kind of series in which we are trying to present the picture in the form of a class interval. Okay, so make two columns, one for the marks and another for the number of students. In the marks, write down 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, and 60 to 69, till 69. What about the number of students? 8, 12, 20, 7 and 3. And now you have to calculate the range and the coefficient of range. Huh? 8, 12, 20, 7 and 3. 27 and 3. Okay. See, this is an inclusive series. First of all, you will convert it into the exclusive. आपको पता है इसमें क्या करते हैं? लोअर लिमिट में 0.5 से माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 से प्लस कर दो, बस करते जाओ. तो पहले क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करो आप इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में. ठीक है. Now you just convert it into exclusive series. So 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, and 59.5 to 69.5. हाँ हाँ, तो 7 ही तो लिखा है मैंने. अरे वो 7 वो मेरा थोड़ा सा अलग रहता है. ठीक है, 7. ठीक है. Now what about the range? The highest value in the class interval is 69.5 and the lowest is the 19.5. So range निकल जाएगा इसी तरीके से, coefficient of range निकाल दीजिए.
हाँ हाँ ठीक। Now the next discussion which we have to make is the interquartile range. Okay, so interquartile range and quartile deviation and their coefficient. Okay, so this is the next topic which we have to discuss, and we have to see what are those formulas which are a part of this overall discussion. So now the very first discussion in the interquartile range is, oh, obviously, क्यों इसको हटाया क्या सिलेबस से? हाँ अच्छा, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, मुझे याद नहीं आ रहा है कि, एक मिनट रुको देख लेते हैं। रिमूव किया गया है? अच्छा, तो इसमें क्या क्या कटा है? अच्छा, जब रिमूव किया गया है तो फिर अननेसेसरी, वही बात है ना, जब रिमूव किया गया है तो अब हम उस पर डिस्कशन क्यों करें अननेसेसरी? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। अच्छा, okay, so these three topics has been removed. I'm just coming. Actually, मीन डेविएशन को रिमूव नहीं करना चाहिए था बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड आपस में काफी मिलता जुलता है।
हाँ वही मैं, मेरा कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड है तो मीन को भी रखना चाहिए था इस साल सिलेबस में। सो वी कैन डू वन थिंग, हम अपनी तरफ से रेंज को और जो ये हम नेक्स्ट टॉपिक क्वार्टाइल वगैरह वाला पढ़ रहे थे उसको रिमूव कर देते हैं, मीन को ले लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, मीन स्टैंडर्ड मीन डेविएशन पे डिस्कशन कर लेते, हो सकता है लॉरेंस कर्व मैं छोड़ दूं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है, हम अपनी तरफ से उसको कर सकते हैं। नहीं नहीं, जो हम पढ़ाएंगे ऑब्वियसली वो हम अपने हिसाब से पेपर को डिजाइन करेंगे, उसमें इसमें कोई वो वाला नहीं बात नहीं रहेगी। So write down something about the mean deviation, that what is this mean deviation and how we have to apply the formula and what are the technical issues which are related with this mean deviation. Okay. अब देखिए, अभी हमने ये देखा कि मीन डेविएशन का जो ये कैलकुलेशन होता है, it can either be made with the help of median, it can either be made with the help of mean, and it can be either made with the help of this mode also. Okay, तो यानी ये जैसे मीन डेविएशन ऑफ मीन रहेगा, मीडियन रहेगा तो आप ऐसे लिखोगे, मीन डेविएशन ऑफ मीन रहेगा तो ऐसे लिखोगे, मीन डेविएशन ऑफ मोड रहेगा तो आप इस तरीके से उसको बताओगे। ठीक है, सो when we talking about the mean deviation of median, write down the formula. Summation x minus median upon n. This is the formula. Summation means you just add up all the values. ठीक है, summation का ये symbol होता है x minus median upon n means the frequency, and here x minus mean upon the n. चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में आप किस तरीके से मीन डेविएशन को निकालोगे। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, wages has been provided. Forty, 42, 45, 47, 40, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 57. Okay, so these are the things that has been provided in the question. Here the question is asking find out mean deviation and its coefficient.
ठीक है, नाउ विल सी दैट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। वेजेस में पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। इट मींस इट इज आस्किंग द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एज वेल एज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। दोनों वैल्यूज के बारे में आपसे पूछ रहा है, दोनों वैल्यूज के बारे में कैलकुलेशन करने की बात कर रहा है। यहाँ पे वेजेस के नीचे वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं, सारी चीजें दी हुई हैं कि क्या क्या है। सो आपको याद होगा कि हम एक चीज किया करते थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मीन, x माइनस ए करके क्या करते थे ना, एक अज्यूम्ड वैल्यू को ले लिया करते थे। यहाँ पे भी अगर दी गई बहुत सारी वैल्यूज हैं, उनमें से किसी भी अज्यूम्ड फिगर को आप ले सकते हो। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज दी हुई हैं, टोटल 9 दी हुई हैं। आई थिंक कि 50 जो है वो बीच में फॉल करेगी। ठीक है, इसको आप ए ले लीजिए। और जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है, इसको आप यू कैन राइट डीएम ऑल्सो। ठीक है, बात एक ही रहती है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, दैट यू कैन राइट डीएम ऑल्सो। ठीक है, 40 माइनस 50, 42 माइनस 50, 47 माइनस 50, 50 माइनस 50, सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये आपका डीएम निकल के आ गया। इन द सेम मैनर जस्ट गो फॉर कैलकुलेटिंग द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। निकालिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जिस तरीके से निकला है इसी तरीके से मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालिए। ठीक है, यहाँ पे आपने जो लिया था 50 ले लिया था। जब आप वहां पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालेंगे तो एट दैट टाइम यू कैन टेक सम अदर वैल्यूज, कुछ और वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल गया। जब आप मीन निकालोगे तो डू वन थिंग, जो भी वैल्यूज आपकी प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे, यानी 40, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 57। ठीक है, इसमें एक काम करिए कि इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लीजिए। और दूसरी तरफ नंबर ऑफ आइटम्स कितने प्रोवाइडेड हैं, 9। ये क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो समेशन x निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू मीन ऑफ x अपॉन 9। और मीन ऑफ x की अगर आप वैल्यू देखो तो वो निकल के आ रही है तकरीबन आपकी 441। सो 441 अपॉन 9 विल बी इक्वल टू 4 9 4 36 एंड 9 9 81। ये आपको 49 मिला है। इस 49 की मदद से नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के केस में आप जो है जो फिगर्स प्रोवाइडेड हैं उन्हीं के में से कोई एक फिगर्स को आप ले सकते हो। लेकिन व्हाइल यू आर गोइंग टू हैव अ कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन,
इन दैट वेरी केस आप जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी दी है उन फ्रीक्वेंसी को ऐड करके n मींस द टोटल नंबर ऑफ आइटम, यहाँ पे जैसे 9 प्रोवाइडेड है, अब ये जो 49 आ रहा है इस 49 को आप माइनस करते चलो। ठीक है, करिए एक बार। ठीक है, अब देखिए आपके सामने आपको एक वैल्यू मिल चुकी है दैट इज इक्वल टू द 49। आप यहाँ पे क्या करोगे, 40 माइनस 49, 42 माइनस 49, 45 माइनस 49, इस टाइप से कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लो कि ये क्या निकल के आया है, यहाँ पे जो निकल के आएगा दैट विल बी t। ओके, सो जब ये सारी वैल्यूज आपकी निकल जाएगी, सो डेविएशन फ्रॉम मीडियन कुछ निकल के आएगा, कुछ भी यहाँ पे प्लस और माइनस में आप देखोगे तो कुछ 4-5 निकल के आएगा। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन विल बी इक्वल टू समीशन। समीशन क्यों निकाला था मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस करके आप टोटल वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है,
तो डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो निकलेगा उसको लिखो n, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 9, उससे डिवाइड कर दो। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो निकल के आया है, यानी ये जो निकल के आया है, इसको मीडियन की वैल्यू से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ हाँ, मीडियन की वैल्यू से आप यहाँ पे उसको डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद सेम स्टेप्स आप इसमें भी फॉलो करोगे, यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में भी। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में यहाँ पे अगर आप फाइनल वैल्यू कुछ निकाल के लेके आए होगे आप लोग माइनस करने के बाद, n मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम से उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ रहा, लेट्स सपोज 100 मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपने मीडियन क्या निकाला है, मीडियन आपका ये 50, जिसको कैसे निकाला था n प्लस 1/2 के फॉर्मूले से। n मतलब नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 9 है, प्लस 1 है अपॉन 2, 10/2। फिफ्थ आइटम यहाँ कौन सा फॉलो हो रहा था 50। ठीक है, यही आपका मीडियन हो गया है, जिसको आप यहाँ से 50 से डिवाइड कर दिए। बात समझ में आई? ठीक है, और इसको निकालने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। क्या चीज? -9 होगा ऑब्वियसली। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगेट, यहाँ पे एक माइनस की जो साइन होती है उसको आप इग्नोर करते हुए चलोगे। ठीक है, मीडियन के केस में आप इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि आप इसको ऐड करिए, आप खुद देख लोगे, यू विल गेट अ वेरी स्मॉलर फिगर। ठीक है, मीन के केस में ये एक जहां पॉइंट आया था मेरे जहन से निकल गया ये बताने के लिए कि मीन के केस में आप इसको इग्नोर करके चलोगे। ठीक है, सो टुमारो विल हैव अ लिटिल बिट अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट, चाहे प्लस में फिगर निकल के आए मीन में, चाहे माइनस में फिगर निकल के आती है, आप इसको इग्नोर करके चलते हो, लेकिन मीडियन में आप इग्नोर मत करना, मीडियन में आप इसको कंसिडर करोगे। ठीक है, कौन आए तो हैं, शायद अभी गए तो हैं।